Hello everyone. Today in this video we will going to learn about gradient, divergence and curl. If you haven't watched the part 1 of vector analysis series, I am putting the link in the description box. Please consider watching it before you start this video. Okay. Now uh, gradient, divergence and curl. Before we jump into these topics, let me tell you about this operator. This is known as vector operator, also known as del or nabla. Okay. Now this is actually a vector quantity. This represents a vector quantity. Okay. Now what is vector quantity, what is scalar quantity, what is vector point function, scalar point function? I've covered each and everything in that video. I'm putting that. Okay, please consider watching it. Now this operator can be represented as in the I, j and k component. Okay, and how can we represent it? This I del upon del x, this is small del, this is used in partial derivative. Okay, plus j del upon del y plus k del upon del z. This I, j, k is vector, so I am putting arrow over their head. So this can be represented like this. Okay, now we will first learn what is gradient. Okay, now come to gradient. What is gradient? Also known as grad. In a short form, you can write it as a grad. Grad is nothing but a vector product, a vector quantity with a scalar quantity. Okay, a vector quantity with a scalar quantity. Now you guys know this very well, that a vector quantity and a scalar quantity multiplying, when you do the product of these two quantities, there should be no sign of dot and cross product between them. Okay, this is a rule. Okay, if there is dot product or cross product, then this complete multiplication would have been meaningless. Okay, so this is not the case. We are doing here grad phi. This is also known as grad phi, or you can represent it like del. This is del phi. Now why grad? So gradients, from gradient you can write it as a grad, and here del and phi. Now if you break this, you will get I del upon del x plus j del upon del y plus k del upon del z, and here is phi. Alright, and this phi, if you just open the bracket, the phi will sit in this fill in the blanks, but you can see that there is a fill up, there is something to be get filled inside this. Okay, so this is the thing which will going to fill in this boxes, and you will get del phi upon del x plus j del phi upon del y plus k del phi upon del z. And this can be also written as the summation of I del phi upon del x, because we don't have that much patience to write each and everything again and again. When we have option of this summation sign, you can use it wisely in this type of situation. So now this is actually what the grad phi. Okay, now comes the divergence. Okay, what is divergence? So divergence short form is div, and if div phi is there, this means this del, okay, and dot a vector quantity. Let me write this for you. You can even use this phi and make it a vector quantity by just putting arrow over there, but I'm just taking v here. Now one thing I didn't tell you over here, that this is actually a scalar field. Why scalar field?
So actually complete del phi is together is a vector point function, but here this is a scalar field. Okay, scalar function to be precise. We have used scalar function with a vector. Here we are using a vector field, that is a vector function. Okay, so here just for your knowledge, this v is a x, y, z. This be a vector function defined and differentiable at each point of x, y, z in space. Okay, then the divergence can be written as del dot v or div v. Okay, now when if we expand this like I del upon del x plus j del upon del y plus k del upon del z with dot product and v. So now this dot product will shift between this and this v will come in the fill the blank of this. So it's such an easy task. Okay, and now again you can write it as a summation form like this. Okay, now let me tell you, if both the quantities are vector quantity and you have a dot product between them, then this represent a scale of quantity, means a scale of field. The complete will give you a scalar point function. Okay, इसमें हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले रहे थे क्योंकि एक वेक्टर और एक स्केलर का प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट है वो एक क्या देगा, स्केलर देगा. ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज कर्ल. ओके, नाउ कर्ल इज नथिंग बट इसके बीच में क्या हो जाता है, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट्स हो जाते हैं. ओके, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व हम क्या किस मेथड से करते हैं, दैट इज़ वी यूज़ द डिटर्मिनेंट मेथड. ठीक है, मतलब ये जो आप यूज़ करोगे, आई एम राइटिंग इट फॉर यू. Cross देना, and as you know that this v can be expressed in the ijk components. ठीक है, ये v को भी हम लोग लिख सकते हैं ना, मीन्स एनी वेक्टर कैन बी एक्सपैंडेड इन द i, j and k component. That is a property of a vector. I hope you guys know as you have all cleared class 12. So v you can expand it like v1i plus v2j plus v3k. Okay, just for the curl, because here we use the determinant method, that is I, j and k. Just put it here, simple determinant method we will going to use v1, v2 and v3. Okay, let me solve it. So you have to just hide this column and this row and you will left with this one minus del v2 by vz. Okay, now here I'm giving plus sign. Okay, if I'm giving plus sign, that means we will going to take del by del z. Here v1 will be there and minus del v3 by vx. Okay, again del v2 by del x minus del v1 by del y, that is k. ठीक है, सो i j k हो गया, ऐसे एक्सपैंड करते हैं. ठीक है, सो नाउ यू टेल मी कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों के बीच में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, तो ये क्या होगा, तो ये भी एक वेक्टर होगा. सो आई एम राइटिंग इट फॉर यू दैट दिस इज, फर्स्ट में भी हमें वेक्टर पॉइंट फंक्शन मिला है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन. सेकेंड में हमें क्या मिला, दिस इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन. ठीक है, स्केलर पॉइंट फंक्शन. एंड थर्ड में हमें क्या मिला, दिस इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन. ये तो हुआ बेसिक
बेसिक बात अभी तक। तो अभी हमें क्या करना है, सो वी विल गोइंग टू लर्न सम प्रॉपर्टीज़। किस चीज़ की प्रॉपर्टीज़? हाँ, वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट डिडक्शन। ओके, डिडक्शन मीन्स हम डिड्यूस करेंगे किसी फॉर्मूलाज को, जैसे कि आपने अभी ग्रैड, डाइव और कर्ल के बारे में पढ़ा। So we will deduce some expansion for this. Okay, so first one is grad phi plus minus psi. ओके, मतलब एक बार मैं दोनों को एक साथ दिखा रही हूँ, मतलब आप प्लस के लिए करोगे भी तो क्या होगा, और माइनस के लिए करोगे तो क्या होगा। सो इसका एक्सपेंशन ये हो सकता है ग्रैड फाई प्लस माइनस ग्रैड साई। नाउ आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, यू हैव टू प्रूव इट। सो हम इसको लेकर चलेंगे और आई विल एंड अप हैविंग दिस रिजल्ट। ओके, सो this is actually grad. You guys know that this can be written like this. अभी हम लोग ऊपर से देखें. Now, okay, I will write it its original form, that is I del upon del x plus j del upon del y plus k del upon del z, and here phi plus minus psi. Okay, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ये अंदर आ जाएगा पाई प्लस माइनस साई प्लस जे पाई प्लस माइनस साई प्लस के ठीक है। अभी हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। किसका, मतलब एक बार इसका एंड एक बार इसका। तो हम ब्रैकेट में डेल अपॉन डेल एक्स लिखेंगे फाई का, और एक बार डेल अपॉन डेल एक्स लिखेंगे साई का। ऑल राइट, ठीक है। ओह सॉरी, एक बार फाई का एंड डेल अपॉन डेल जेड होगा, एक बार साई का, ठीक है, हो गया। नाउ जब आप ये आई जे कंपोनेंट को अंदर कर दोगे, आई आई जे जे के, तो जितने भी जो फाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स टर्म्स है वो एक साइड लिखना है, और फिर जितने भी डेल साई अपॉन डेल एक्स है उसको एक साइड करना है, ठीक है। सो आई विल एंड अप हैविंग लाइक दिस। ओके, सो ये जो हमारा आया है, जो आई, ये हम अलग अलग करके जो लिखे हैं अभी, तो इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि ये जो भी है ये तो डेल है, और इसके साथ फाई एक्स्ट्रा आया है, और प्लस ये जो है ये भी एक डेल है, और उसके साथ एक साई एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। और मैं क्या की ना, स्टार्टिंग से ही मैं ये गलती करके आ रही हूँ, यू कुड हैव नोटिस्ड इट, कि स्टार्टिंग से गलती नहीं, ये स्टेप से मैं गलती कर रही हूँ कि ये मैंने माइनस का साइन सब में छोड़ रखा है। ओके, इधर माइनस का साइन, सो ये दोनों के लिए। तो यही तो हमारा प्रूफ था, ठीक है, जो हमारा ग्रैड फाई ग्रैड साई, यही हमारा ग्रैड फाई ग्रैड साई। तो इसी तरह से आप डाइव का कर सकते हो, कर्ल का कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डाइव का करते हैं। चलिए, तो हम लोग सेकेंड नंबर जो है क्या है, डाइव, इज इट विजिबल, इस माइनस दिस बी। तो ये जो है इसको हम लिख सकते हैं डाइव ए प्लस माइनस डाइव बी। उसी तरीके से आपको करना है, बड़ा सिंपल है। चलिए देखते हैं कैसे। सो मैंने LHS
से स्टार्ट करनी है, तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस. अब if you are writing in the form of this, so you have to give a dot product. तो डाइव का मतलब ही होता है कि डेल के साथ a प्लस माइनस b के बीच में रिलेशन है डॉट का. ठीक है, दैट इज. ठीक है, वेरी इजी. और जब भी हम देखते हैं कि ये डॉट जहाँ आ गया, तो ये जब डॉट अंदर ये पूरा चीज़ जाएगा, तो ये डॉट किसका किसके बीच में रिलेशन हो जाएगा, आई के साथ रिलेशन आ जाएगा. ठीक है ना. अच्छा, तो आप इतना लिखना. अभी तो जैसे मैं आई के लिए लिख रही हूँ, फिर जे के लिए लिखूँगी, फिर के लिए. इससे बेटर है, कांट वी गिव दिस साइन? या वी कैन. आप यहाँ लिख सकते हो समेशन, कोई काटेगा नहीं नंबर. ठीक है, यहाँ जैसे ही आप ये साइन दोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स. पहले ए का करेंगे, फिर प्लस माइनस डेल अपॉन डेल बी का करेंगे. ठीक है. ठीक है, समेशन का साइन है, मतलब जे के लिए भी है, के लिए भी है. राइट. सो बेटा आपको इसको इस तरह लिखना होगा, क्योंकि समेशन अब ब्रैकेट आ गया ना, तो दिस समेशन विल बी फॉर दिस एंड दिस टू. सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, del a by del x plus minus summation I del b by del x. Dot sign will be there, and now this can be written as del dot a plus minus del dot b. Okay, this is del dot a and del dot b. Okay, कोई दिक्कत नहीं है. And this is div a and div b, hence proved. देखिए, जब आप डाइव लिखोगे तो डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, जब इसके फॉर्म में लिखोगे तो डॉट प्रोडक्ट. लिखने का तरीका है. ठीक है, अगर आपको समेशन वाला अच्छा नहीं लग रहा है, अरे यूज टू नहीं हो, तो ठीक है, मैं कर्ल वाला बताऊंगी और समेशन लेके नहीं करूँगी. ठीक है, क्योंकि अक्सर बुक में क्या होता है, बुक्स में समेशन से बताते हैं, क्योंकि वो बुक वाले तो बहुत जल्दबाजी में बताते हैं, तो वो समेशन लेके बता देते हैं, उनका काम ख़त्म हो जाता है. बट हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. अब हम कर्ल का करते हैं. कर्ल ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू कर्ल ए प्लस माइनस कर्ल बी. ठीक है, तो इसका करते हैं. कर्ल को हम कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, अब मैं एक स्टेप्स जंप करके डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, ब्रैकेट के अंदर कर दे रही हूँ. मतलब मैं इसको इस तरह से लिख दे रही हूँ कि पहले इसको डेल ए डेल एक्स प्लस माइनस डेल बी डेल एक्स, फिर इसको अलग अलग ना करके मैं डायरेक्ट आई को भी मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दे रही हूँ. ठीक है, अब देखिए, ये दिस वन एंड दिस वन, इसे आप एक से कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम ए का ही पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं. ठीक है, और जहाँ जहाँ बी का कर रहे हैं उसको अलग अलग लिख सकते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं आई
देखिए यहाँ पर क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल ए अपॉन डेल again it is y, okay, plus k क्रॉस डेल ए अपॉन डेल जेड। तो इसे हम एक तरफ कर रहे हैं एंड बीच में होगा प्लस, अगेन माइनस मैं यहाँ पर छोड़ी हूँ या तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस छोड़ दी हूँ, तो यहाँ पर कर देती हूँ। अभी कहाँ पर छोड़ी, मैं इधर नहीं देना था, बीच में इधर देना था, ठीक है, इन दोनों के बीच में। ना इधर आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल बी अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यू कैन सी क्लियरली कि ये कर्ल ऑफ ए है, ठीक है। जब आप ए को बाहर करोगे, ओके, अच्छा पहले मैं लिख दे रही हूँ, दिस इज कर्ल क्रॉस ए, क्योंकि जब आप इसको एक्सपैंड करते हो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट इधर आ जाता है और ए अंदर आ जाता है, ठीक है। इसलिए कर्ल ए प्लस माइनस ये क्या आ गया, कर्ल बी आ गया, ठीक है। या ऐसे आप लिखो कर्ल ए प्लस माइनस कर्ल बी। सो ये था ना इतना ईजी, कर्ल ए और कर्ल बी। सो हम लोग 3 डिडक्शन देखे और तीनों डिडक्शन काफ़ी इजी था, हम लोग देखे, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मज़ा आएगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन जब आपको समझ आ जाएगा चीज़ें तो फिर लॉन्ग क्या शॉर्ट क्या, समझ आ गया तो वो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब प्रोडक्ट का देखते हैं। देखिए अभी तक हम लोग जो एल्जेब्राइक जो हम लोग की एल्जेब्रा वो सिर्फ प्लस माइनस का ही किए हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि आप ग्रैड फाई और साई ये प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो मैं ग्रैड फाई और साई प्रोडक्ट का बता रही हूँ, इसका ऐसे ही डाइव का भी होगा, कर्ल का भी होगा, ठीक है, वो आप देखना। तो इसका रिड्यूस करना है आपको, फाई ग्रैड साई प्लस साई ग्रैड फाई। अच्छा ये थोड़ा थोड़ा, अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये एक्चुअली हम लोग वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं। लाइक आप वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ोगे, वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, ठीक है। तो वैसे जब ये भी है, इसको आप ऐसे मानिए, ये आप डिफरेंशिएट करें यू वी का, तो एक बार यू वी का यू को ऐसे एज इट इज़ रख के वी का डिफरेंशिएशन करेंगे और वी को एज इट इज़ रख के यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये वेक्टर कैलकुलस है। सो व्हेन यू विल connect the calculus part with this vector part, ठीक है, you are getting as a vector analysis and वही हमें पूरा ये करना है, ठीक है। so write it like this and this can be written like अब इसको अंदर आ जाएगा तो आई डेल फाई और शाई, अब इसमें हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हियर, तो ये सबसे पहले मैं इसको बाहर रख के डेल प्लस इसको बाहर रख के डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। एक्चुअली इसमें ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, प्लस नाउ अगर जब आप इसे अंदर करोगे, ये आई ये भी आई होगा और ये जे, तो ये इसमें भी सेपरेट करना है, तो इसको मैं अलग करके लिखूँगी, इसको एक साथ लिखूँगी, इसको एक साथ लिखूँगी।
तो जब आप इसको इसको और इसको एक साथ लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, यू विल हैव आई, यहाँ पर फाई डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस जे, फिर फाई डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस के फाई डेल साई अपॉन डेल जेड। ठीक है, एक तरफ ये आएगा फिर प्लस दूसरी तरफ और वो आएगा, तो मैं पहले एक तरफ का लिख रही हूँ क्या होगा ये। तो इसमें जो है फाई जो है ये सब में कॉमन है, यहाँ भी फाई कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो फाई को मैं बाहर लिख ले रही हूँ। ठीक है, और फाई को बाहर लिखने का रीज़न ये है कि आप फाई को एज अ कॉमन अगर आप निकाल रहे हो तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो। तो और ये क्या हो गया, ये फाई, और ये एक्चुअली क्या है, ये डेल, ये ग्रैड साई है। ठीक है, इसे ग्रैड साई कहते हैं। तो देखिए एक तरह का मेरा फाई ग्रैड साई आ गया। ठीक है, वैसे ही जब आप इस तरह इधर इस साइड का करोगे सो आपका क्या आएगा, आई। अब यहाँ पे फाई था तो यहाँ पर क्या है, ये हम ये वाला लेंगे, साई वाला लेंगे, तो यहाँ पे साई आएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली, ये आप लिख देना इधर, मैं इधर डायरेक्टली लिख रही हूँ कि साई कॉमन ले लेंगे हम, फिर आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई हो जाएगा और के डेल फाई अपॉन डेल जेड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया इधर, साई ग्रैड दैट इज डेल फाई। तो देखिए कितना इजी था हमारा कंसेप्ट, हमको पता है तो ये भी हमको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब देखिए तो ये एक्चुअली प्रोडक्ट रूल लगा, जैसा आप यूवी रूल लगाते हो प्रोडक्ट में, वैसे ही आप चाहो तो डाइव का और कर्ल का अपने से करके देख सकते हो। ठीक है, एक और रूल बच रहा है जो 5 नंबर डिडक्शन है, दैट इज़ दी कोशेंट रूल। तो हम कोशेंट रूल भी देखते हैं। तो ये हम बुक से देख रहे हैं, जैसे 5th नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये है, ओके दिस वन। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो डेल इतना है इसको इतना लाना है, तो डेल मतलब ये और इतना, इसके अंदर जब फिल इन द ब्लैंक्स में होगा तो इस तरह से। अब आप पार्शियल डेरिवेटिव इसका करोगे तो ये तो क्वोशिएंट u बाई v फॉर्म है, तो इसको जैसे आप डिफ्रेंसिएशन में क्या करते थे, पहले आप v को रखते थे, फिर u का डिफ्रेंसिएशन माइनस u को रख के v का डिफ्रेंसिएशन बाई v स्क्वायर, तो वही करना है इसमें। देखिए देखिए वही किया हुआ है, v को रख के u का डिफ्रेंसिएशन माइनस u को रख के v का डिफ्रेंसिएशन और बाई v स्क्वायर मतलब साई स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व किया है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आएगा इतना, देयरफॉर फ्रॉम वन क्या था, ये हमारा 1 था। ठीक है, 1 से हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो साई ये डेल फाई बाई डेल जेड है, डेल फाई अपॉन, अच्छा तो ये देखिए ये कैसे आया, ये आप जो कर रहे हो ये सिर्फ इतना तक का, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये इक्वेशन नंबर 1, अब देखिए इसमें अलग क्वेश्चन रूल, इसमें अलग क्वेश्चन रूल, इसमें अलग क्वेश्चन रूल लगेगा, मतलब इसमें u बाई वी अलग सॉल्व कीजिए, वो अलग से किया है, ये फर्स्ट टर्म के लिए है, फिर u बाई वी इसके y वाले के लिए यहाँ पर है। ठीक है, फिर z वाले के लिए यहाँ पर है। अब फ्रॉम 1 से ये तीनों का जो वैल्यू है वो बैठा देना है। ठीक है, सब में 1 बाई साई स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दिया है और फाइनली आपका यह है आंसर। ठीक है, आई होप आपको पांचों के पांचों डिडक्शन काफ़ी अच्छे से समझ आ गए हैं। थैंक यू।